This video is for 4A and B. We are going to study chapter 8, parts of speech. What is part of speech? Part of speech are used in the English grammar. We use this part of speech whenever we speak or something or write something. And there are 8 parts of speech. Their names are given below. Number 1, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Let's start with noun. What is noun? A noun is a naming word which it can be a name of a person, place, thing or quality. Okay, in person there can be any name like Sheila, Rita, Ram, anything. Place it can be a park, school, university or a name of a city like Kolkata or Delhi, name of a country like India or America. In things it can contain many things like copy, book, pen, table, chair, and in quality like honesty, cruelty, kindness, all this come in quality. So let's see the example. Ashoka was a great king. In this sentence, which word show the noun? This Ashoka is a noun because this is the name of a person. So this Ashoka will become a noun. Next, the rose smells sweet. इसमें कौन सा noun है? Rose, because it is the name of a thing. Delhi is the capital of India. इसमें कौन सा word noun है? Delhi है, क्योंकि ये name है एक place का, एक जगह का. His honesty was praised by all. Honesty quality में आता है. Okay, so ये हो गया noun. Next, let's move on to pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. Let's see the example. Preeti is a good dancer. She loved dancing. So यहाँ पर दो सेंटेंस है. Preeti is a good dancer और दूसरा सेंटेंस है she loved dancing. अब यहाँ पर हम लोग प्रीति लव डांसिंग नहीं लिखेंगे, बार बार प्रीति प्रीति नहीं लिखेंगे, तो प्रीति के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? she. तो she हो जाएगा प्रोनाउन. गीता इज रीडिंग द स्टोरी बुक. हर ब्रदर वॉन्ट्स इट. गीता क्या है? नाउन है. यहाँ पर स्टोरी बुक भी नाउन है. तो यहाँ पर गीता के बदले में हम लोग क्या लिख रहे हैं? हर लिख रहे हैं. और स्टोरी बुक के बदले में क्या लिख रहे हैं? इट लिख रहे हैं. तो हर और इट हो जाएगा प्रोनाउन. द बॉयज आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड. दे आर रेडी टू प्ले अ मैच. यहाँ पर बॉयज़ के बदले में हम लोग इसके जगह में क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे. तो दे हो जाएगा प्रोनाउन. नेक्स्ट, adjective. What is an adjective? An adjective is a describing word. Adjective is a word that adds to the meaning of a noun or a pronoun. Manoj is a good student. So यहाँ पर student क्या है? नाउन है. एंड गुड क्या हो जाएगा? उसको डिस्क्राइब, हम स्टूडेंट कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो एक गुड स्टूडेंट है, तो गुड हो जाएगा एडजेक्टिव. ही गेव मी सम मनी. मनी नाउन है. एंड यहाँ पर मनी को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? कितना मनी उसने दिया? सम. तो सम हो जाएगा एडजेक्टिव. ही इज़ एंग्री विथ हिज सिस्टर. यहाँ पर ही है प्रोनाउन, तो ही को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. वो क्या हो, क्यों वो अपने सिस्टर से एंग्री है, तो एंग्री हो जाएगा एडजेक्टिव. Let's move on to verb. What is verb? A verb is a doing word. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. It tells us what the subject is or does. Verb बहुत ही important होता है. कोई भी sentence इंग्लिश ग्रामर में without verb नहीं लिखा जा सकता. Let's see the example. The sun give us light and heat. तो sun क्या काम कर रहा है? वो light and heat दे रहा है. तो give हो जाएगा verb. We worship our God daily. What we does daily? We worship. Worship हो जाएगा verb. They are my sisters. इसमें are हो जाएगा verb. Adverb next. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or an other adverb. Adverb वो होता है जो वो एक सेंटेंस में अगर verb और adjective दिया हुआ है तो उसको और इसमें इसका मीनिंग को और एनहांस करने के लिए उसमें कोई दूसरा वर्ड हम लोग ऐड करते हैं. जैसे द सनराइज हियर इज़ वेरी चार्मिंग. यहाँ पर सनराइज जो है वो नाउन है. उसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? चार्मिंग. चार्मिंग एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव को में और मीनिंग डालने के लिए और उसमें और ज़्यादा मीनिंग डालने के लिए कौन सा वर्ड डाला जा रहा है? वेरी. वेरी चार्मिंग. तो वेरी हो जाएगा एडवर्ब. रक्षा हेल्प्स अदर्स हैप्पीली. यहाँ पर हेल्प्स हो जाएगा वर्ब. तो वर्ब को और डिस्क्राइब करने के लिए और उसको उसमें मीनिंग ऐड करने के लिए कौन सा वर्ड उसमें और लगा रहे हैं हम लोग? हैप्पीली, कि वो दूसरे की मदद बड़ी खुशी से करती है.
इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हॉट तो है ही, डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है, उसमें और दूसरा वर्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं एक्सट्रीमली, ये एक्सट्रीमली हो जाएगा एडवर्ब। Next, preposition. What is preposition? A preposition is a word which shows a relation between a noun, pronoun and some other word in a sentence. Answer. So, preposition वो होता है जो noun और दूसरे word के बीच में relation बताता है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं example, there is a cow in the field. काव क्या है, नाउन है, और दूसरा वर्ड क्या है, फील्ड। तो ये दो वर्ड के बीच में रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, इन। तो काव कहाँ है, इन द फील्ड, तो इन हो जाएगा preposition. शी पुट हर पर्स ऑन द टेबल, पर्स नाउन है, टेबल भी नाउन है, ये दो वर्ड के बीच में रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन। तो ऑन हो जाएगा preposition. पर्स कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ही रेस्टेड अंडर द ट्री, ही है यहाँ पर प्रोनाउन और यह ट्री नाउन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, अंडर। वो कहाँ रेस्ट कर रहा है, ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, कंजक्शन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप और वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। जैसे टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर टू एक वर्ड है, ये टू दूसरा वर्ड है, ये दो वर्ड को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, एंड। तो एंड हो जाएगा कंजक्शन. रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन. रन फास्ट एक सेंटेंस है, यू विल मिस द ट्रेन दूसरा सेंटेंस, ये दो सेंटेंस को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, और। तो और हो जाएगा कंजक्शन. ही वर्क हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, ये एक सेंटेंस है, दूसरा है कुड नॉट सक्सीड, ये दो सेंटेंस को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, बट। तो बट हो जाएगा कंजक्शन. ओके, सो लास्ट, इंटरजेक्शन. An interjection is a word that expresses some sudden or strong feeling. Interjection वो word होता है जो हम लोग suddenly हम लोग के strong feeling हम लोग के मुंह से निकलता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो सडनली हम लोग के मुंह से क्या निकलता है, जब हम लोग कुछ जीत जाते हैं, ठीक है, कोई मैच जीत गए, जैसे हुर्रा, ही हैज़ स्कोर्ड अ गोल, हुर्रे हो जाएगा यहाँ पर इंटरजेक्शन, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। ही इज़ सेफ, तो यहाँ पर कोई किसी को हम लोग बचा लेते हैं एक्सीडेंट से, तो फिर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, सडनली वो वर्ड निकलता है तो हो जाएगा इंटरजेक्शन, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर देना है। अलास शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, तो अलास इंटरजेक्शन है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. होमवर्क में आप लोग को क्या करना है, ये चैप्टर फिर से एक बार रीड करना है, और पेज 32 में एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज कॉपी में करना है, और असाइनमेंट एक दे रहे हैं हम, 10 सेंटेंस है ये चैप्टर से रिलेटेड, वो भी कंप्लीट करके कॉपी में कंप्लीट करना है, और फिर पिक्चर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. ओके, थैंक यू.